کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین محترم ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لاہور کے بڑے ہی پرفریدہ مقام پر، ایک بڑی مشہور و معروف جگہ ہے، یہ دریائے راوی کے عقب میں یہ اسپاٹ ہے۔ یہ آج کل لوگوں نے اس کو تفریح گاہ کا نام دیا ہے اس جگہ کا۔ تو ہم آج جہانگیر کے مقبرے پر تشریف فرما ہیں۔ تو ابھی میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاعری مشرق حکیم الامت کا شعر میں نے آپ کو سنایا، جو آپ نے سماعت فرمایا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اس شعر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آقائے عالم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے بڑی معرفت کی بات سمجھائی ہے۔ چونکہ ہم دریائے راوی کے قریب یہ جہانگیر کا مقبرہ ہے، یہ ہمارے کیمرہ مین دکھائیں گے، یہ بالکل مقبرے کے قریب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ آپ دروازہ ملاحظہ فرمائیں، اس کو ذرا دیکھیں دروازے کو۔ اس دروازے کے بالکل ساتھ ہی جہانگیر ایک بادشاہ تھا اپنے دور کا، تو یہ اس تاریخی ایک بادشاہ کا ایک جگہ ہے جہاں پر وہ کسی زمانے میں کسی وقت میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے گھرانے کے ساتھ یہاں پر سیر و تفریح زندگی آسائشوں میں زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ تو یہ اس بادشاہ کی سمجھنے کے قبر کے پاس ہم یہاں موجود ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے دنیا میں ہر قسم کے ہیں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ تو بات ویورز مجھے بتانے کا آپ کو یہ جو میرا مقصد ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس جگہ کے اوپر ہم موجود ہیں، جہانگیر کے مقبرے پر۔ تو یہاں پر اصل میں جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے وہ ایک عبرت کا مقام نظر آتا ہے، چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، یہ سورۃ بقرہ غالباً اس کی آیت مبارک میں نے تلاوت کی۔ تو ویورز بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، چونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ دریائے راوی کے قریب ہی بالکل اس کے اپوزٹ یہ جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ یہ میرے کیمرہ میں نے دکھایا ہے کہ جہانگیر کے مقبرے کی حالت دیکھیں آپ، ذرا کنڈیشن چیک کریں کہ ٹوٹے پھوٹے دروازے اور لکڑی کے جالے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور بڑے یعنی کہ نا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، یہ تقریباً صدیوں سے یہ خستہ حالی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اصل میں یہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک نظام چل رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جو دین سے عشق کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتا ہے، اس کی زندگی اور اس کی آخرت دنیا میں ایک عملی نمونہ ہے، ایک دنیا داروں کے لیے، دنیا کے لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ایک بہترین جگہ ہے۔ اور ایک جگہ پر اس قسم کے یعنی کہ نا اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے اندر لذات کے اندر اور دنیاوی خواہشات کے اندر اپنی زندگی کو، تمام تر زندگی کو ضائع کیا۔ تو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، یہ ہمارے لیے ایک عبرت کا مقام ہے، ایک نصیحت آموز جو ہے نا، یہ ہمارے ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز دکھائی ہے کہ دیکھیں اس دریائے راوی کے قریب ہی اس طرف یہ ایک دنیا دار کی قبر ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا، ایک انسان تھا، لیکن اپنی زندگی اپنے انداز سے، اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر اپنی زندگی کو گزار کے دنیا سے چلا گیا۔ ایک اس کی دنیا میں رہنے کا اور اس کی دنیا سے جانے کا آج یہ عبرت کا ایسا مقام ہے کہ جب ہم یہاں پہ انٹر ہوئے تو گیٹ کیپر نے جو یہاں پہ دربان کھڑے ہوئے ہیں، اس نے ہم سے پیسے طلب کیے
20 रुपये टिकट मांगी। तो व्यूवर्स मेरा कहने का मतलब ये है कि इन जगहों के ऊपर कभी लोग सोने चांदी ज़ेवरात से खेला करते थे, मौज मस्ती और ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजारा करते थे। आज ये ऐसा इबरत का मुकाम बन चुका है कि अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं हम कि इन जगहों के ऊपर टिकट तक लग चुकी है और यहाँ पर लोग देखने को नज़र नहीं आ रहे। तकरीबन यहाँ पर व्यूअर्स मेरा बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर तकरीबन हम 1 से 2 घंटे तक यहाँ पर चल फिर रहे हैं। यहाँ पर हम इस चीज़ से इसका मुआवजा कर रहे हैं, इबरत हासिल कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कोई बंदा नहीं देखा। देखो ये भी कि इंसान की कब्र है। और रावी की परली साइड पर जहाँ पे हजूर दाता गंज बख्श अल मारूफ उस्मान बिन अली अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है, एक वो भी अल्लाह ताला के बंदे हैं। अब वहाँ पर अगर हम जाएँ, वहाँ पर अमूमन जब भी हाज़िरी हुई है, जब भी अल्लाह ताला ने हाज़िरी का शर्फ अता किया है, तो वो एक अल्लाह के वली कामिल की कब्र मुबारक है। आपको सिर्फ लाहौर ही में नहीं बल्कि पूरी कायनात के अंदर लोग दाता अली हजवेरी के नाम से जानते हैं। ये आपका लक़ब है क्योंकि अल्लाह ताला की सिफ़त अपने नेक बंदों को चीज़ें अता फरमाता है। तो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मैंने सबसे पहले आपके सामने व्यूअर्स कुरान करीम की आयत पढ़ी, फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। आज ये देखें कि आज जिन लोगों ने दीन से प्यार किया, अल्लाह ताला से मोहब्बत की, कुरान करीम से मोहब्बत की और कुरान की इत्तबा करी, आज अल्लाह ताला ने उनकी कब्रों के ऊपर कैसी रौनकें और कैसी यानी कि बरक़ात नाजिल फरमा रहा है। दाता अली हजवेरी के दरबार में जब कोई इंसान जाता है, चाहे वो नेक है, चाहे बद है, चाहे बद किरदार है, चाहे बुराइयों में मुब्तला है, तो वो अल्लाह के वली कामिल की बारगाह में जब जाता है, तो व्यूअर्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह के मुकर्रब बंदों की बड़ी शान है। कुरान करीम की आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि खबरदार सुन लो कि अल्लाह के वलियों कोई खौफ और कोई गम ना होगा। तो ये अल्लाह के वलियों की शान है। अल्लाह ताला बताता है कि ये मेरे ख़ास बंदे हैं कि इन लोगों ने मुझसे दुनिया में रहते हुए मुझसे इश्क किया, जनून की हद तक अपना तन मन धन, अपनी औलाद, अपना वक़्त, अपनी जवानी, सब कुछ मेरी राह में कुर्बान की। आज देखें कि दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार पर, बल्कि लाहौर में किसी भी जगह जाएँ तो मैंने अक्सर सुना है रेडी वालों से, टांगे वालों से, बस वालों से, वैगन वाले, रक्शे वालों से मैंने ज़ुबान से उनके सुना, तो वो आवाज़ें लगाते हैं, दाता दाता, दाता अली हजवेरी, दाता दरबार, दाता दरबार। तो व्यूअर्स मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह का कुरान फरमाता है कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। तो आज उन लोगों ने अल्लाह का जिक्र किया, अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह को याद किया, अल्लाह से मोहब्बत की। आज अल्लाह ताला की रहमत से हर बंदे की ज़ुबान पर दाता दरबार का नाम यानी कि जारी व सारी है। ये अल्लाह ताला की दी हुई इज़्ज़त है। और एक तरफ ये जहांगीर का मकबरा, आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि ये मकबरे का ये आलम है कि यहाँ पे तकरीबन मैं जब से 2 घंटे यहाँ पर खड़ा हूँ या मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कोई बंदा ना बंदे की साथ नज़र आ रही है। अभी यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पे बड़े खूनखार और जो ख़तरनाक किस्म के यहाँ पे जानवर ही मैंने देखे, न्योला वगैरह या सांप बिच्छू वगैरह यहाँ पे मैंने चलते हुए देखे। ये मेरे कैमरा मैंने दिखाया कि जहांगीर के मकबरे की जो दरवाजे हैं ना, ये भी खस्ता हालत में, और आज से नहीं है, और ये कई सालों से हैं ये। लेकिन उधर मेरे दाता हजूर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान मुबारक ये देखें कि दाता साहब के दरबार पर हर बंदा जो भी हाजिर होता है वो सबसे पहले तो वज़ू करता है। वज़ू करने के बाद वो कुरान करीम की तिलावत करता है और फिर वहाँ पर खड़े होकर वो फातिहा पढ़ता है और अल्लाह के वली को, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के कामिल वली हैं, ये उन वली की बारगाह में खड़े होकर, वो चाहे मर्द है, चाहे औरत है, बच्चा है या बूढ़े हैं, मैंने अक्सर देखा कि वहाँ पे बड़े बाअदब खड़े होकर बावजू वो लोग वहाँ पर सलाम अर्ज़ करते हैं। तो ये सिहा सित्ता किताबों के अंदर मैंने एक हदीस मुबारक पढ़ी, इसका मफ़हूम मैं आपको बयान करता हूँ। अल्लाह ताला हदीस कुदसी मैंने पढ़ी, तो हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता कि जिसने मेरे किसी वली से बुग़्ज़ रखा उससे मेरा ऐलान जंग है। तो नाज़रीन मोहतरम व्यूअर्स, आपको मेरा बताने का मकसद ये है कि कायनात के अंदर हमेशा उसी बंदे ने निजात पाई और फलाह पाई है जिसने अल्लाह ताला और उसके रसूल से वफ़ा की है, जिसने कुरान करीम से मोहब्बत की है और जिसने दुनिया को ठोकर मारी है।
उसी ही इंसान ने दुनिया में अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल किया और दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह पाक ने उसको इज्जत से नवाजा है। तो किसी बुज़ुर्ग ने क्या खूब कहा कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, तुझे अंधा किया रंगो बू ने, कभी गौर से ये भी देखा है तूने, जो थे महल आबाद पड़े अब वसूने, मकी खा गई नौजवां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे, हुए नामवर अहले शां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत नई और फैशन निराला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। तो रिवर्स नाज़रीन मोहतरम, इस जगह पर आने का हमारा मकसद जो था वो यहाँ पर हम इबरत के मोती जो हैं उनको इकट्ठा करें। तो ये हमारे सामने जीती जाती तस्वीर है कि एक दुनियादार किस्म के इंसान की हम एक जगह पर जहाँ पे उसकी कब्र है उसके मकबरे पर हम यहाँ पर हाजिर हुए हैं। तो यहाँ पे हमें काफ़ी इबरत के मोती हमें मिले हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम दुनिया की जो आर्जी लज्जतें हैं, जो दुनिया की ख्वाहिशात हैं, इनसे हमें अपने आप को बचना चाहिए, महफूज रखना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला ही ने इंसान को इंसानों की इस्लाह के लिए पैदा किया है। तो कुरान पाक की आयत सूरत असर के अंदर अल्लाह फरमाता है, वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि कसम है ज़माने की, कसम है नमाज